Good afternoon. Good afternoon, Bhavna ji, Geeta ji. How are you doing today? Good afternoon. How are you? Good, I'm good. good. I'm good. Good afternoon. Good afternoon, Bhavna ji. So, Bhavna, you weren't there. Did you watch the video recording? Which one? Yesterday's video. Yes, yesterday and day before. Yesterday वाली तो नहीं की थी, पर उससे पहले वाली मैंने आपके साथ किया था सेशन. हाँ, आप यहाँ पे थे. Okay. How did you feel about like going into within and talking to your inner child? And गीता जी, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको कैसा लगा? Did you write down? Yesterday also we left it. Yes, yes, yes. Okay. I will. I will. Okay, so let's start. We will continue that self-love वाला healing part today also. हम अपने आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं. अभी 2-3 दिन से हम वही कंटिन्यूसली कर रहे हैं. तो आज भी थर्ड डे है, तो आई थॉट के लेट्स कंटिन्यू दैट एंड देन फ्रॉम टुमारो ऑन we can take other kind of EFTs and other kind of areas in our life. But today self love wala karte hain. So yeah, let's start with peak state programming. I forgot to send the just a second. Okay, so let's start our peak state programming. That you are running an Olympic race and you are winning. In the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes, I can do it. We can do it. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes. So let's yes, start. Very nice. Leg. And you say to yourself, I am the winner. I am the winner. Yes, thank you. So now, repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster. Yes, faster, still faster. Yes, come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on, yes. Run faster, come on. इतने सारे लोग भाग रहे हैं. Yes. And you are the winner. Faster. Yes, come on, fast. You can do it. Come on, run faster, still faster. Yes, run faster. You are going to win. Come on, you're the winner. I'm the winner. Come on, faster. Yes. Come on, yes. Okay. Wonderful. Just Yes, stop. Thank you. We all are the And winners. now you say to yourself, yes, all are the I'm the winners. winner. Yes, I'm the I'm the winner. winner. I'm the winner. I'm the winner. And now we say to ourselves, I can. I Okay, can. repeat. I will. can. I must. I will. I must. I can. I I will. will. I I must. must. Thank you so much. Just we will continue some of the stretching exercises. Okay, so
जो भी लोग नहीं थे अभी 2 दिन से, अभी पहले ही मैंने थोड़ा समझाया कि हमने क्या किया। तो 2 दिन से वी वर गोइंग इनटू विदिन, टॉकिंग टू आवर इनर चाइल्ड कि उसकी कौन सी जरूरतें थी या उसकी कौन सी ऐसी चीजें थी जो हम उसको उस टाइम पे उससे नहीं मिल पाई थी। एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू मेक पीस विद दैट चाइल्ड। वो जो हमारा इनर चाइल्ड है जिसको हम बहुत पीछे छोड़ के आ गए, सो वी आर ट्राइंग टू मेक अ पीस विद दैट चाइल्ड, क्योंकि वो चाइल्ड ने हमसे मुंह फेर लिया है, क्योंकि हमने उसका साथ ही नहीं दिया कभी। तो अभी उसको मनाना पड़ता है, रिझाना पड़ता है। तो जो भी है, हमने अभी 2 दिन से हम लोग उसी को वही प्रैक्टिसेस कर रहे थे। वी वर राइटिंग ऑल्सो, सो लेट्स कंटिन्यू दैट कम अगेन। सो दिस इज अगेन सेल्फ लव प्रैक्टिस। तो आज भी हम वो सेल्फ लव वाला प्रैक्टिस ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। EFT हम सेल्फ लव के ऊपर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इवन दो I abandoned my inner child, और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि I abandoned my own self years ago। कहीं ना कहीं पे मैंने उसकी जरूरियातों को नहीं पूरा किया, नहीं समझा। But now I choose to love all parts of me deeply and completely। Even though मैंने कई सारी चीजें ऐसी थी जो बचपन में मैंने अपने इनर चाइल्ड को नहीं दी थी। ऐसी कई सारी चीजें थी जिसमें उसकी ख्वाहिशों को मैंने कंप्लीटली इग्नोर किया। But I still deeply and completely love, accept, and honor my inner child, my all parts of me. Just take a deep breath. Now think about your 5-year-old self, your 10-year-old self, your 15-year-old self. आपके इतने सारे पार्ट्स थे। जब आप जन्म हुआ था तब पूछिए ये सारे पार्ट्स से कि क्या चाहिए आपको। आपके क्या ऐसे बिलीव्स हैं जो लिमिट करते हैं हमें। Take a deep breath. Open your heart, open your arms. Expand yourself. Okay, now let's do our sequencing. सीक्वेंसिंग में आप अपने अपने खुद के इमोशंस देखिए, उसके ऊपर आप खाली टैप करते जाओगे, वो इमोशंस रिलीज होते जाएंगे। आई विल जस्ट से सम जनरल थिंग्स, बट यू कैन सी योर ओन इमोशंस व्हाट्स कमिंग अप। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने अपने इनर चाइल्ड को कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीजों के लिए मना कर दिया। उस टाइम पे मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। इनफैक्ट जो मेरा माहौल था, सामाजिक माहौल या घर का माहौल होगा, ओवरऑल मेरे देश का जो माहौल है या जो भी है, जिसकी वजह से मैंने अपने इनर चाइल्ड को बोला कि तुझे ही कम आशाएं रखनी होंगी, तुझे कॉम्प्रोमाइज करने होंगे,
तू जो सारी चीजें चाहती है वो तुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं पे किसी ने बोला यू डोंट डिजर्व इट. And I told the same thing to my inner child, that you don't deserve it. और शायद ऐसा भी बोला कि यू आर नॉट वर्थ इट. तेरे अंदर ये सारी कमी है, तो तू ये सारी चीजों के लायक ही नहीं है. बहुत बार मैंने अपने इनर चाइल्ड को डांट दिया कि तेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, तेरे अंदर जो काम करने की क्षमता होनी चाहिए वो नहीं है, या तेरे अंदर ये स्किल्स नहीं है, तू पढ़ाई ठीक तरह से नहीं कर सकती है. या किसी के साथ कंपेयर करती रही कि देख वो तो ऐसी है या ऐसा है, तू क्यों नहीं है, तेरे दांत क्यों ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, या तेरी स्किन ऐसी क्यों है, तू इतनी मोटी क्यों है या पतली क्यों है, जो भी है. बट टुडे I choose to love my inner child. I choose to accept my inner child exactly the way I am, exactly the way you are. I accept you. I love you. I embrace you the way you are and the ways you are not. I embrace my inner child with lots of love, kindness, and compassion. And I release whatever is there within me that's stopping me from connecting with my inner child. I release all their resentments. I release all those doubts. I release all of that resistance that's stopping me from connecting to my inner child. I release and I'm at peace with all parts of myself. My teenage self, my young self, my newborn self, my 5-year-old self, my adolescent self. I'm at peace with all of them. And I accept and appreciate each part of myself. Exactly the way they are. And I cater to the needs of all those parts of me. I cater to the needs of all different parts of me. I cater to the needs of my inner child. And so it is, and so be it. Now the meditation is very, very important. We have been doing it for past 2 days. आज हम 2 meditations करेंगे. एक जो मिरर वर्क के अंदर डे 8 का जो होता है मेडिटेशन,
वो भी हम आज करेंगे। तो जितना हो सके मेडिटेशन के एक एक वर्ड्स में जितनी आप फीलिंग्स डाल सकते हो अपनी ध्यान फोकस लगा के, तो इतना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, सो इट्स डे 8 वाला जो है बहुत ही छोटा सा ही है, तो वो भी हम साथ में करेंगे। एंड देन जो डे 9 का जो मेडिटेशन है वो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिट विथ योर स्पाइन स्ट्रेट। जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। टेक सम डीप ब्रेथ्स बिफोर वी स्टार्ट दिस मेडिटेशन। और अपना वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए। अभी माइंड एंड बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। एंड लेट्स स्टार्ट। Mirror work meditation, day 8. Let go and relax. आपका 8वें दिन का ध्यान जाने दे और आराम करें। एक अच्छी गहरी सांस लें और अपनी आंखें बंद कर लें। एक और गहरी सांस लें और अपने शरीर को पूरी तरह आराम करने दें। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित करें और उन्हें बिल्कुल शिथिल हो जाने दें। अब अपने तलुए, अपनी एड़ी और अपने टखनों को ढीला छोड़ दें। अपने पैर के पंजों को भारी हो जाने दें। इस शिथिलता को अपनी पिंडलियों से होते हुए घुटनों तक जाने दें। इस गर्माहट और आराम को अपनी जांघों में जाने दें और उन्हें भारी होता महसूस करें। Take a nice deep breath and close your eyes. Take another deep breath and allow your body to completely relax. Let your attention move to your toes. Allow them to completely limp. Now relax your insteps, your heels, and your ankles. Let your feet become heavy. Allow this relaxation to move up your calves and into your knees. Continue to move this warmth and relaxation into your thighs, feeling them become heavier. अब अपनी कमर और अपने कूल्हों तथा नितंबों को शिथिल होने दें। अपनी कमर को शिथिल होने दें और फिर महसूस करें कि शांति आपकी छाती की ओर बढ़ रही है और आपके कॉलर बोन हंसली से गुजरते हुए आपके कंधों में जा रही है। अपनी बाहों के ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ दें। अपनी कोहनियों को शिथिल हो जाने दें। अपनी बाहों को, निचले हिस्से को, कलाइयों को और हथेलियों को शिथिल हो जाने दें। तनाव के अंतिम हिस्से को अपने हाथों की उंगलियों से बाहर निकल जाने दें। अपनी गर्दन को शिथिल हो जाने दें। फिर अपने जबड़े को, अपने गालों और अपनी आंखों के आसपास की सभी मांसपेशियों को, अपने माथे और सिर को शिथिल हो जाने दें। पूरा आराम महसूस करें। Now let your hips, your buttocks relax. Allow your waistline to release and then feel the peacefulness move up into your chest, expanding through your collarbone and into your shoulders. Allow your upper arms to let go. Let your elbows relax. Let your lower arms, wrists and hand relax. Let the last of the tension move out through your fingertips. Let your neck relax
and then your jaw, your cheeks, and all the muscles around your eyes. Let your forehead and scalp relax. Let go, let go, let go. Relax. मिरर वर्क, आपके 9वें दिन के लिए आपका ध्यान, भीतरी बच्चे को प्रेम करना। बीते समय में वापस जाएं, स्वयं को 5 वर्ष के बच्चे के रूप में देखें। इस बच्चे के आगे हाथ बढ़ाएं और कहें, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूँ। प्रेम से इस बच्चे को गले लगाएं और अपने साथ वर्तमान में ले आए। दोनों को एक साथ आईने के सामने खड़े होकर प्रेम से एक दूसरे को देखते हुए देखें और जब आप वहां खड़े हो तो इस बात से अवगत हो जाए कि आपके ऐसे कितने हिस्से हैं जो वहां मौजूद नहीं है। अब और पीछे के समय में जाएं, उस पल में जब आपका जन्म हुआ था। आप अभी अभी माता के गर्भ में से बाहर आए हैं। शायद वो एक मुश्किल यात्रा रही होगी। आप ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं और तेज प्रकाश देख रहे हैं और शायद किसी ने आपको अभी अभी थप्पड़ मारा है। आप दुनिया में आ गए हैं। आप यहाँ एक पूरा जीवन जीने के लिए आए हैं। उस नन्हे से बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। अब समय में थोड़ा आगे बढ़कर उस पल में आए जब आपने चलना शुरू किया था। आप खड़े होते थे और गिर जाते थे, खड़े होते थे, गिर जाते थे, खड़े होते थे, गिर जाते थे और फिर अचानक आप खड़े थे और आपने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम और आप चल रहे थे। आपको स्वयं पर कितना गर्व हुआ था। उस छोटे बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। अब समय में और आगे बढ़कर अपने स्कूल के पहले दिन में आए। आप अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहते थे, पर आपने छोड़ा। आपने अपने स्कूल की दहलीज पर पहले कदम रखे। आपको डर लग रहा था, पर आपने कदम बढ़ाया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया। उस बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। अब 10 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को याद करें और उन सब चीजों को भी जो उस समय हो रही थी। शायद वह समय बहुत अच्छा था, शायद बहुत मुश्किल था। आपने उसका सामना करने की पूरी कोशिश की और सफल रहे। उस बच्चे को प्रेम करें, बस उस बच्चे को प्रेम करें। अब उस समय की ओर बढ़े जब आप यौवनावस्था में प्रवेश कर रहे थे और उस समय की सब बातें याद करें। वह समय रोमांचक था, डरावना था और शायद उसे संभालना आपके लिए मुश्किल था, लेकिन आपने उसे संभाल लिया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, बस उस व्यक्ति को प्रेम करें। वह समय याद करें जब पहली बार आपका प्रेम अस्वीकार हुआ था और आपके दिल में इतना दर्द हुआ था कि आपको विश्वास हो गया था कि अब कभी कोई आपको प्रेम नहीं कर पाएगा। आप कितनी तकलीफ में थे। आप जितना कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने जीवन के एक और मील के पत्थर पर जाएं। वह आपके लिए शर्मनाक या अद्भुत या दुखद रहा हो सकता है। जैसा भी था, आपने उस समय की अपनी समझ, बुद्धि और जागरूकता के साथ वह सब किया जो आप कर सकते थे। इसलिए उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने सब हिस्सों को इकट्ठा करके
आगे वर्तमान में ले आए। स्वयं को अपने सब हिस्सों के साथ आईने के सामने खड़ा देखें और महसूस करें कि आप अपने जीवन की समृद्धि और परिपूर्णता को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में मुश्किल समय था, दुखद समय था, शर्मनाक समय था और उलझन भरा समय भी था, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब जीवन के अंग है। अपने सब हिस्सों को प्रेम करें। अब पीछे मुड़े और जब आप आगे देखें तो अपने सामने एक व्यक्ति को बाहें फैलाए देखें जो कह रहा है, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूँ। जीवन अपने आप को प्रेम करने का एक असीमित अवसर है। भूत, वर्तमान और भविष्य। अपने हर एक हिस्से को प्रेम करना और स्वीकार करना ही उपचार है। यदि आप अपने किसी भी हिस्से को अस्वीकार करते हैं तो आप परिपूर्ण या स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? उपचार का मतलब है अपने आप को फिर से पूर्ण बनाना। स्वयं को प्रेम करें, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करें और पूर्ण बने। सब ठीक है और ऐसा ही है। So all is well in my world, and so it is, and so be it. So now let's do our Ho'oponopono technique to heal all parts of ourselves. जो भी हिस्से हमारे ऐसे हैं जिसको हमने स्वीकार नहीं किया है कहीं ना कहीं पे, ये पूरी जर्नी ही इसी के बारे में है। तो वो सारे हिस्सों को आज हम होपोनोपोनो टेक्निक से हील करते हैं। ये जो डिवाइन 4 सेंटेंसेस है, so let's put a hand on our heart. You keep imagining all the different parts of yourself. जब आपका जन्म हुआ था, 1 साल के जब बच्चे थे, जब चलना या दौड़ना स्टार्ट किया था, उसके बाद थोड़ा सा बड़े हुए, 4 साल की उम्र में या 5 साल के जो बच्चे थे, उस टाइम, वो वाला टाइम याद करें। और थोड़ा ऊपर जाए 5 इयर्स के बाद, जब आप 10 साल के थे, 10-11 साल के, उस बच्चे को इमेजिन करें। अभी जब आप टीन एज में थे, 14, 15, 16, वो पूरे सालों को याद करके वो वाले बच्चे को भी वर्तमान में ले आए। Now bring your adolescent self also. ये सारे हिस्से हमारे ही है, कहीं ना कहीं पे हमने उनको उस टाइम पे रिजेक्ट कर दिया था। But now today is the time to heal them, to love them, to embrace them exactly the way they are. It might have been difficult times, it might have been hurtful times, or it might have been good, whatever it is. कभी भी अगर हमने अपने आप को बुरा भला बोला है, that means अपने कहीं ना कहीं पे हमने अपने इनर चाइल्ड को रिजेक्ट किया है। जब कभी भी हमने अपने आप को किसी के साथ कंपेयर किया था, हमने अपने इनर चाइल्ड को रिजेक्ट किया था, उसकी ख्वाहिशों को इग्नोर किया था। So let's heal our inner child. Let's ask for our divine self, our higher self, to help us in this process.
And now let's imagine all the different parts of us and let's ask for forgiveness. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry for all those times when I didn't approve you and you were seeking approval from others. When I didn't love you and you expect the love from others. I'm sorry for all those times when I didn't accept you exactly the way you were. I'm sorry for all those times. Please forgive me. I thank you. I thank you for coming up to this point by overcoming all your fears, all your worries, all your doubts. And I love you. I'm sorry for all those instances where I totally ignored your desires. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Just for a moment or two, be with your inner self, inner child. अभी ये मेडिटेशन में से आप बाहर आ सकते हैं, बट मेडिटेशन के बाद जैसे हम 2 दिन से भी लिखते आए हैं कि जो भी हमारे अंदर है, जो भी इनर चाइल्ड हमें बोलना चाहता है, जो भी वो कहना चाहता है, वो सबके लिए आप पेन और पेपर ले लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है?
So अभी 2 दिन से तो हमने gratitude नहीं किया, but I feel like let's do it for at least 5 minutes, and then you please continue with this process, because ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में. जितना हम अपने खुद के साथ रिलेशन अच्छा करते जाएंगे, हमारा इनर चाइल्ड के साथ हम जितना कनेक्टेड है, उतना ही हमारी लाइफ और आसमान को छूने लगेगी. तो बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपने इनर चाइल्ड के साथ पीस में हो, उसके साथ कनेक्टेड हो, उसकी सारी ख्वाहिशों को देखे, पूरा करे सब कुछ. तो लेट्स डू सम ग्रेटिट्यूड. बहुत डीप में नहीं करेंगे, बट थोड़ा करके. एंड देन यू प्लीज ऑल, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू राइट. अगर आप बोलो तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, देन वी कैन लीव इट. आप लोग सब स्टार्ट तो कीजिए आफ्टर ग्रेटिट्यूड. ओके, ठीक है. आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट हियर, सो यू डोंट फिर ऐसा होगा कि जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा आपको कोई काम में आप लग जाएंगे, शायद जो भी हो सकता है. आई वॉन्ट यू टू राइट. So let's first do some gratitude today. Let's thank Almighty for this beautiful new day. Thank you, thank you, thank you, God, for this beautiful, amazing life, which is full of love, peace, harmony, joy, abundance of health, abundance of wealth, abundance of prosperity, abundance of harmonious relations, everything abundant in my life. Thank you so much, God, for this new day. Today is the best day of my life. एक और ये नया दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इतनी बेहतरीन लाइफ देने के लिए शुक्रिया. हमें ये सारी चीजें सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे गुरुस का. आश्मीन मैम, राजन सर, प्राची, लिया, so many different people who came into our life and taught us something. पीके शिवानी, संदीप महेश्वरी, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इन सबसे बड़ी तो जो ये ऑथर है रोंडा ब्रायन, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. इन्होंने इतनी सारी अच्छी बुक्स लिखी और हम उसको पढ़ पा रहे, समझ पा रहे, बिकॉज ऑफ ऑल अवर गुरुस. उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया. और हम पूरे एक एक दिन में जो सीखते जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारा हर एक दिन हमारे अगले दिन से और बेहतर होता जा रहा है. जो भी कोई चैलेंजेस आते हैं हम इजीली उसको पार कर लेते हैं, बिकॉज आप हमारे साथ हो, बिकॉज आपका हाथ हमारे सिर पे है, बिकॉज योर गाइडेंस एंड सपोर्ट इज ऑलवेज विथ अस. तो हम कुछ भी, कोई भी मुश्किल आती है, बहुत इजीली उसको पार कर लेते हैं. So thank you for your support, thank you for your guidance. ये 5 दोस्तों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. धरती माता जो इतना कुछ देती रहती है, बहुत कुछ देती है, हमारा बहुत ध्यान रखती है, हमें हम्बल रहना सिखाती है, हमें काइंड रहना सिखाती है. तो धरती माता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इतनी प्यारी धरती माँ के लिए. ये पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो पानी अमृत जैसा पानी है. पानी के बिना बिल्कुल भी हमारा जीवन संभव नहीं है. ये पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये मैग्निफिसेंट एयर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमें इतना सारा ऑक्सीजन देती है और हमें जिंदा रखने के लिए जो भी गैसेस की हमारे अंदर जरूरत है वो देती है. और इसके सारे ट्रीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से वो अपना खाना बनाते हैं. सो ऑल दिस हार्मनी, सिंक्रोनाइजेशन जो है यूनिवर्स के अंदर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये पूरे आकाश के लिए, स्पेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सूरज दादा की गर्मी, उनके एनर्जी के लिए, उनके प्रकाश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस 5 elements. Thank you for my body. The gift of health is keeping me alive.
Thank you for this amazing body and the trillion cells in my body जो 24/7 काम करते हैं कि मैं जिंदा रह सकूं और मैं इतने अच्छे से सारा कुछ वो कर पाऊं, अपना पर्पस, जो पर्पस के लिए मैं आई हूँ धरती पे, वो पर्पस में जी पाऊं। इस सब कुछ के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, thank you for all the money that I have been given throughout my life. So I want you all to start writing right now. लिखना क्या है? अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या लिखना है, अगर आप 2 दिन से नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं। लिखना क्या है कि आपको अपने इनर चाइल्ड की जो भी ख्वाहिशें थी, और जो भी चीजें याद आ रही, मे बी कोई अच्छे वाले भी memories हो सकती है, but we are working on the bad memories right now. Bad memories in the sense like कभी किसी ने बोला और आपने उसको उस टाइम पे डांट दिया, तो now you have to show the love for that particular thing. तो ये इस तरह से आपको लिखना है. So how do we start? You just start with 5-year-old. Maybe वो आपको बताएगी कि मुझे रोज खेलने जाना था, बट मैं नहीं खेल पाती थी, मुझे कोई लेके नहीं जाता था, कभी कभार ही पार्क में जाने को मिलता था, ऐसा बता सकती है. या वो बता सकती है कि सारे मेरी कजिन के सारे फ्रेंड्स वो सब खेलते थे साथ में, बट मुझे नहीं लेके जाते थे, मुझे अकेला छोड़ देते थे. ये भी आपको बता सकती है, जो भी होगा. सो स्टार्ट विथ योर 5-year-old. देन मूव ऑन. वो फिर आप अपने आप बढ़ते जाओगे. आई नो, मैंने जब लिखा तो मैं अपने आप बढ़ती गई. With then 10-year-old, then 15-year-old, then adolescent. तो जो भी आप 2 दिन से भी लिख रहे होंगे, कंटिन्यू कीजिए वो लिखना. So this is very very important practice. आप बहुत हल्का फील करोगे, बहुत शांत फील करोगे अंदर से. I can guarantee that. And important thing, after you write, do the mirror work. मिरर के सामने जाके अपने आप को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोलिए, आंखों में आंखें डाल के. कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले आंखों में आंखें ही नहीं डाल सकते थे, बट अभी आप डाल सकते हो क्योंकि आपने ये सारी प्रैक्टिसेस की है. तो जितना हो सके अपने आप को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोलनी है मिरर के सामने. दैट इज अ काइंड ऑफ, जैसे मैंने कल भी बोला था कि एक जख्म निकला हुआ है, उसको मरहम लगाना है, उसको बोलना है, आई एम विथ यू, आई लव यू एंड आई एम्ब्रेस यू. फिर अपने आप को एम्ब्रेस करके, जितना हो सके अपने सारे हिस्सों को एम्ब्रेस करके प्यार करना है मिरर के सामने. So this is very 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 important practice. So I hope you all understand. Start writing. I think भावना already. उषा जी, दिव्या जी, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, जैसे आप कह रहे हो कि उस टाइम पे जैसे कई हमारी ख्वाहिशें दब गई होंगी, मैम जो चिल्ड्रन होते हैं वो यूजुअली डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, वो पास्ट, दे लिव इन प्रेजेंट. मतलब ऐसी कोई चीजें बच्चे याद नहीं रखते, तो फिर इसका मतलब उस टाइम पे फिर वो बैड मेमोरीज उनके अंदर कैसे रह जाती हैं? जैसे बच्चे यूजुअली मतलब याद नहीं रखते ना कोई भी चीज, दे ये लिव इन हमारी प्रेजेंट माइंड एट की ऑलवेज. फितरत होती है कि बैड चीजों को याद करना, ये हमारे माइंड की फितरत होती है. अभी भी आप देखना, इसीलिए तो हम ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं. हमारा माइंड हमेशा, अभी आप देखोगे कि आपके पास 99% चीजें आपकी बहुत अच्छी चल रही है. ये खाली एग्जांपल देती हूँ. माइंड क्या करेगा, वो 1% जो चीज नहीं चल रही है ना, वहां पे ही अटका रहेगा. उसको आदत ही नहीं है कि अच्छी चीजें क्या है देखने की, वो हमेशा उसी पे चाहेगा. इन हमारी माइंड की फितरत भी होती है कि हम अपने आप को भी ऐसी ही बातें बताएंगे. ऑलमोस्ट 95% ऑफ पीपल का जो इनर डायलॉग होता है वो हमेशा क्रिटिसाइजिंग, डाउटिंग, ऐसा ही होता है. ये हम अकेले नहीं है, किसी का ज्यादा कम हो सकता है, बट जो हमारा इनर डायलॉग होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि ये माइंड की फितरत है. इसीलिए हम ये सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम अपने आप को, अपने माइंड को ही ट्रेन कर रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव देखना सारी चीजों में, और अपने आप से भी पॉजिटिव बोलना. हम अपने ही आप देखना, अपने दिन में, पूरे दिन में धीरे 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 आपको एहसास होगा कि हम कितना सारा नेगेटिव अपने बारे में बोलते हैं.
कुछ काम नहीं होगा तो अब हम झट से बोल देंगे, अरे तुझसे तो ये काम ही नहीं हो रहा है, चल हट, तुझसे नहीं होगा, फिर आप छोड़ भी दोगे वो काम। यानी अंदर जो बोल रहे हैं इनर डायलॉग, उसी तरह हम बाहर एक्ट भी करेंगे फिर। तो ये सारी चीजें, हाँ जी। Ma'am, I want to ask you how to start writing it about ourselves. Like gratitude means, can you give one or two example about it? अभी मैंने जैसे दिया है ना, आपका इनर चाइल्ड आपको बता सकता है कि मुझे बहुत पसंद था खेलने जाना, पार्क में जाना, बट मुझे नहीं जाने को मिला, मम्मी उस टाइम पे नहीं लेके जाती थी, जो भी रीजन रहा होगा। यानी यहाँ पे हम मम्मी के लिए कोई रिसेंटमेंट नहीं लिख रहे, बट हम यहाँ पे अपने इनर चाइल्ड की नीड्स को कैटर कर रहे हैं। You understand? Yeah, I mean to say, is this being recorded? Because if there is any personal, I want to ask you personally, it is being recorded and you will expose it in the Facebook, right? Or in that? Not Facebook. It's like downloaded on the YouTube channel. Oh, okay. So I will ask you personally better later on. So if I can turn off the recording, anybody, if you want to ask. Yes.